Assalamu alaikum students. Today we are going to cover another topic in international finance which will focus specifically on the exchange rates. First we will go for the review of the previous lecture, that what we have covered in our last lecture. The importance of international credit market in terms of international bond markets and international stock markets, that we discussed why multinational companies go for international bond markets or why they go for international stock markets. One of the criteria is that sometimes it happens that you are, or being in MNC, you are getting loans at cheap rates on the countries where your parent organization is not settled. Say for example, we discussed, for example, your parent company is in America, however the subsidiaries are in different countries and you are getting cheap loans in the other countries rather than getting it straight from America. International stock markets, we discussed that not only because that you are getting on cheap standards or cheap prices you are getting loans, but also you will have a focus or an exposure in international markets कि जहाँ पे आपकी फर्म या फिर आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको recognition भी मिलता है being on the foreign markets. Then we also discussed that what are the different categories by which the investments can be made. First of all, the foreign trade, where we discussed especially in terms of imports and exports. Direct foreign investments, where we discussed that when you invest in fixed assets, so that investment is called your direct foreign investments. Third, we went for the short-term investment, where we discussed that in terms of money market instruments. So when we are discussing the short-term investment and long-term investment, they are basically part of your portfolio investments, where we said that they will be specifically in financial assets, one thing. Secondly, in short-term investment, they will be the one where you are focusing on basically less than 1 year of maturity of all the financial assets. So that means whatever you are basically investing, you are doing it in terms of short-term basis. Finally, we discussed the longer term financing, where we discussed that you go for the transactions or go for the any type of your business activity in terms of long term financing. Then we also discussed that how financial markets can affect a multinational company's value. As we discussed that the more important factor about the financial asset is, or about the international markets, is that it should be, one thing, liquid. Second thing, say for example, in a financial system, the competitive advantage will be with the one who is offering less transaction and information costs. अब transaction कॉस्ट क्या है कि जब आप किसी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं, सो आपको उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, या आपको उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितनी कॉस्ट्स रिक्वायर्ड है, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट. से फॉर एग्जांपल आपने 1000 की कोई ट्रांजैक्शन करनी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एंड लेट्स से दैट यू हैव टू बेयर 200 रुपीज ऑन दैट ट्रांजैक्शन. सो दैट मीन्स बेसिकली आउट ऑफ 1000 you are left with 800 rupees for your financial transaction. However, 200 have been gone for the transaction. Now you know कि अगर आपने 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, over that you need 200 rupees for the transaction. So basically what happens कि आपके पास transaction costs जो हैं वो काफ़ी higher हैं. Second time when you will do the transaction, say for example you are not happy with your previous transaction, now you want to go for another transaction. What will happen? That out of those 800, again 200 will be charged for the transaction. So that means 1000 rupees, अब आपके पास 600 rupees रह गए, और 400 तो आपने transaction costs pay कर दी. In that case, investors जो हैं, they get demotivated because they know for each and every transaction they have to bear a very high transaction cost. So in that case, basically what happens, transactions cost, those markets where the transaction costs are low, investors would prefer
those markets, because in that case they know it कि अगर 1000 रुपए आपके टोटल ट्रांजैक्शन के हैं, so say for example 10 rupees आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज हो रही है, in that case obviously it's quite evident कि आपकी 990 की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. And again if you want to go for another transaction 10 rupees, it's okay, fine, you can basically take that 10 rupees out for the another transaction, and you can say okay fine, I'm going for another transaction because the transaction costs are low. However, on the other hand, we have discussed अगर आपको 200 rupees per transaction charge हो रहे हैं, so obviously investors जो हैं reluctant होंगे बहुत ज़्यादा transactions करने से, and जब बहुत ज़्यादा transactions नहीं होंगी market में, तो market liquid नहीं होगी. And we have already discussed कि liquidity जो है, that means कि बहुत ज़्यादा buying और selling जो है, that basically create the mobilization of funds into the market, which is very important. So transaction costs are basically supposed to be low to basically create the mobility of funds into the market, so that more and more investors can be attracted towards the financial system or financial sector. And then secondly, why financial markets can have an impact over multinational companies' value is the information cost. फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनी किसी जगह कोई फंड्स बोरो करना चाहती है या लेंड करना चाहती है. सेकेंडली अगर उसको कोई ट्रांजैक्शंस करने हैं, आपको इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जांपल ले लें कि अगर किसी इंडिविजुअल ने फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस करने हैं इन फॉरेन मार्केट्स और फॉरेन बॉन्ड मार्केट्स, अगर इंफॉर्मेशन कॉस्ट्स हायर हैं, so obviously you have to pay for information costs, so the investor would be reluctant for those markets. Why? Because they know it that for each and every transaction or for each and every market they need to pay for the information costs. तो जितनी information costs gather करनी है उनको उतना ही ज़्यादा basically pay भी करना है. However, on the other side, say for example, अगर हम Swiss stock markets की हमने example discuss की थी कि उनका सारा system basically computerized हो गया है, and they are having very few less transaction cost, or maybe there is no transaction cost in their case, plus everything is mentioned on the website. तो जहाँ पर आपके इंटरनेट यूज हो रहा है, इंटरनेट की फैसिलिटी यूज हो रही है, और वहाँ पे बेसिकली ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज clearly mentioned on the website. So secondly, we discussed the information costs, where we discussed that those markets where you don't have to pay for information, or those markets where you have to get information on internet or the information is available on the website. So those are the one where basically more and more investors are attracted. In that case, if you know कि आपको किसी foreign market में invest करना है और उस market की सारी information उनकी website पे available है, what will happen? Obviously, you would prefer those markets. You would think rather than going for those markets where you have to pay for the information, it's always better to go for those markets where the information is available on internet or where the information is available on the website. In that case, investor would be more tempted towards those markets where information costs are low. So two criteria. One thing, investors are attracted towards the market where transaction costs are low. Second thing, where information cost, whether there is no information cost or very low information cost. So more and more investors would be attracted, and MNCs would go for those markets where either the transaction costs are very low and the information cost, whether it is no information costs or very low information cost. Final criteria we discussed was exchange rate risks. So obviously MNCs or the financial markets that can have an impact over the health of MNCs is that where the exchange rates are not too much volatile. So there is less exchange rate risk and there is less volatility in exchange rates. So these were the three criteria which can have an impact over multinational companies' values. So basically we have discussed all these three very important factors from the multinational companies' point of view, that one thing, transaction cost and information cost should be low, or there shouldn't be any cost for transaction or information. Finally, that exchange rate should be stable or less volatile. So less volatility or no volatility is recommended rather than those markets where the exchange rates are highly volatile or there is a lot of fluctuation in exchange rates.
So let's move on towards the next topic, which is determination of exchange rates. Since we have discussed from multinational companies or international finance perspective, whenever you are talking about international finance, so what is international finance? The cash inflows and the cash outflows of multinational companies, or whatever transactions are recorded in your current account or capital account are your criteria for international finance. Now the transactions which are recorded for the inflows of funds or outflows of funds, both are basically dealing with the exchange rates or with the foreign currencies. So जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की इनफ्लोज में या आउटफ्लोज में, सो बेसिकली यू आर डीलिंग विद द एक्सचेंज रेट्स. सो फर्स्ट थिंग, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, यू शुड नो कि आपके एक्सचेंज रेट्स का क्राइटेरिया क्या है एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव. So the objectives of the whole criteria for determination of exchange rates would be, first of all, that how to measure or how to basically exchange rate move, and these movements are measured. So basically, first of all, you should know that how exchange rate movements are recorded or how exchange rate movements are measured. How the exchange rate equilibrium is determined, or the equilibrium point in exchange rates are determined, and the factors that can affect the equilibrium exchange rate. Now first of all, the exchange rate measures the value of one currency in terms of the units of another currency. सो हम जब बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट, सो यू शुड नो कि एक्सचेंज रेट है क्या. बेसिकली एक्सचेंज रेट डिटरमिन्स और मेजर्स द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द अदर करेंसी. व्हेन अ करेंसी डिक्लाइंस इन वैल्यू, जब किसी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन करेगी, डाउनवर्ड्स जाएगी, सो इट इज सेड टू बी डेप्रिशिएटेड. तो अगर आप ये टर्म कहीं पे भी देखें कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, सो दैट मीन्स कि करेंसी डी वैल्यू हो रही है या फिर उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है. हाउएवर ऑन द अदर वे और ऑन द अदर साइड, व्हेन इट इंक्रीजेस इन इट्स वैल्यू, इट इज सेड टू अप्रिशिएट. सो अगर किसी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड appreciated. On the days some currencies appreciate while the others depreciate against a particular currency. So there is a possibility that on one day some currencies appreciate its value against any particular currency. That currency is said to be mixed in trading. जब आपकी कुछ वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं, कुछ इंक्रीज कर रही हैं अगेंस्ट अदर करेंसीज, सो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इन trading, because at some point it is depreciating on some other against other currency, it is appreciating, so that is called mixed in trading. Exchange rate movements affect and multinational companies' value because they can affect the amount of cash inflows received from exporting or from a subsidiary and the amount of cash outflows needed to pay for the imports. So as we discussed earlier कि exchange rate क्यों important है multinational companies के, because आपको payments लेनी भी हैं और payments देनी भी हैं for imports and exports. तो जब आपने payments लेनी है against your exports, तो obviously तब भी एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व होगा क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपने फॉरेन ट्रेड किया है. उस केस में रुपी के अगेंस्ट रुपी की ट्रांजैक्शन नहीं है, उस केस में मे बी रुपी के अगेंस्ट डॉलर की है, रुपी के अगेंस्ट आपके पाउंड्स की ट्रांजैक्शन है, रुपीज के अगेंस्ट आपके इंडियन रुपी की ट्रांजैक्शन है. सो ऑब्वियसली हर करेंसी की अपनी एक वैल्यू है. सो इन दैट केस इंपोर्ट्स के लिए या एक्सपोर्ट्स के लिए जब ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट वुड बी इन्वॉल्व इन दैट. सो इन दैट केस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स या एक्सचेंज रेट को रिकॉर्ड करना या मेजर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. As economic conditions change, exchange rates can change substantially. A decline in currency's value is often referred to as a depreciation. तो economic conditions के against भी currencies upward trend या downward trend show कर सकती हैं.
When the British pound depreciate against US dollar, तो अगर तो ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू US डॉलर के अगेंस्ट डिक्लाइन कर रही है या डिप्रिशिएट कर रही है, दिस मीन्स US डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग रिलेटिव टू पाउंड. तो जो करेंसी बेसिकली वैल्यू में इंक्रीज कर रही है अगेंस्ट अदर करेंसी, उसको हम स्ट्रेंथनिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज इस एग्जांपल में ब्रिटिश पाउंड जो है वो वीक हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, सो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है. When a foreign currency's spot rates at two specific points in time are compared, the spot rate at more recent date is denoted as S and the spot rate at earlier date is denoted as ST-1. आपसे हमने बात की थी पहले स्पॉट रेट्स की. स्पॉट रेट क्या है? एट द स्पॉट, आपके उसी वक्त अगर आपने ऑन द स्पॉट आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है एक्सचेंज रेट्स की, से फॉर एग्जांपल आपने रुपी को डॉलर में या डॉलर को रुपी में इसी वक्त अभी इमीडिएटली ट्रांजैक्शन करनी है, दैट इज योर स्पॉट रेट विच इज अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग एनीथिंग. तो अगर तो फर्दर मूविंग ऑन द टेक्स्ट, आपके पास स्पॉट रेट की बात हम कर रहे हैं इन करंट टाइम, सो दैट विल बी डिनोटेड एज एस और ST, जो कि करंट टाइम के लिए स्पॉट रेट डिफाइन होगा. ऑन दी अदर हैंड ST-1 जब हम करेंगे, T-1 हमेशा आप याद रखें कि हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि T-1 एनीथिंग से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लास्ट मंथ की बात करनी है तो T अगर आप मंथ्स में ले रहे हैं, सो T-1 इज योर प्रीवियस टाइम. So the percentage change, अगर आपने percentage change रिकॉर्ड करना है in the value of foreign currency, that will be recorded as ST, जो आज का spot rate है, माइनस ST-1 से फॉर एग्जाम्पल आप पिछले महीने की बात कर रहे हैं, सो ST आज की डेट में स्पॉट रेट क्या है, माइनस ST-1 जो पिछले महीने इसी डेट पे स्पॉट रेट था वो क्या है, डिवाइडेड बाय पिछले ही मंथ का आपका स्पॉट रेट. So that will give you the percentage change in 1 month from where ST denotes the spot rate at time T. So that means आपने अगर percentage change निकालना है आज के स्पॉट रेट से किसी करेंसी का पिछले महीने के स्पॉट रेट से, कि एक महीने में करेंसी में कितना चेंज आया है, whether it is positive change or it is negative change, what you gonna do is कि you have to take it out by using this formula कि spot rate ST which is today's spot rate, ST-1 last month's spot rate. Say for example let's say कि आज 5th जून है, 5th जून का स्पॉट रेट माइनस 5th मई का स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय 5th में spot rate will give you the percentage change in the value of foreign currency, and that depends कि आपकी foreign currency में कितनी fluctuation हुई है या कितना डिफरेंस आया है. प्लस देयर कैन बी अनदर ऑब्जेक्टिव कि आप देख सकते हैं कि करेंसी डिप्रिशिएट हुई है या अप्रिशिएट हुई है, वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. परसेंटेज चेंज में आपके पास बेसिकली पास्ट टाइम का करंट टाइम के अकॉर्डिंगली आपके पास चेंज आ जाता है इन एनी फॉरेन करेंसी. So a positive change represent appreciation of the foreign currency, while a negative change will represent depreciation. So it depends कि आपके पास करेंसी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, चेंज की वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज, कि आपके पास पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है. अगर आपके पास पॉजिटिव चेंज आ रहा है सो दैट मीन्स करेंसी अप्रिशिएट हुई है, अगर आपके पास नेगेटिव चेंज आ रहा है सो दैट मीन्स करेंसी डिप्रिशिएट हुई है. Let's consider this example. Say for example 1st January 2000 and then 1st January 2001. तो इस करंट एग्जाम्पल में हमने ईयरली बेसिस के ऊपर करेंसी का चेंज नोट किया है बाय यूजिंग द सेम स्पॉट रेट फार्मूला, और एक्सचेंज रेट और एनुअल परसेंटेज चेंज निकाला है जो कि आपके थर्ड कॉलम में आ रहा है. सो आपके 2000 में एनुअल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ यूरोज. सो जो करेंसी इन एन एग्जाम्पल में हमने कवर की है इसमें बेसिकली 2000 से 2001 के दरमियान आपके यूरो में कितना चेंज आया, देन 2001 से 2002 के बीच में आपकी यूरो करेंसी की वैल्यू में कितना चेंज आया, एंड वी कैन सी द चेंज वाज नेगेटिव, तो करेंसी डिप्रिशिएट हुई. इन 2003
it had a positive trend or a positive change that reflect appreciation or the euro was appreciated. In 2003 to 2004 आपका परसेंटेज चेंज जो कि हमने स्पॉट रेट फॉर्मूला जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा उसके थ्रू कैलकुलेट किया, तो करेंसी जो आपकी है वो बेसिकली 20% रिटर्न शो कर रही है. सो दैट मीन्स 20% एनुअल परसेंटेज चेंज शो कर रही है. दैट शोज कि आपके पास बेसिकली करेंसी अप्रिशिएट हुई है इस वैल्यू के साथ. और आपके पास चेंज क्या आएगा, जिस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आप बेसिकली 2004 का अगर आपने चेंज निकालना है फ्रॉम 2003, तो स्पॉट रेट फॉर्मूला लास्ट 2 रोज को आप अगर देखें तो आपके पास सबसे लास्ट में वैल्यू आ रही है 1.26, राइट. तो इसको बेसिकली आप ST कंसिडर करेंगे और पिछले साल की वैल्यू को आप बेसिकली ST-1 कंसिडर करेंगे और फॉर्मूला में प्लग करके आप एनुअल परसेंटेज चेंज फाइंड कर लेंगे. नाउ व्हाट इज एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम. अभी तक हमने बात की कि आप स्पॉट रेट के थ्रू किस तरह परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं और करेंसी की डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Now let's discuss the exchange rate equilibrium. Although it is easy to measure the percentage change in the value of currency, however, it is more difficult to explain why the value changed or to forecast how it changes in the future. अच्छा फाइन, आप स्पॉट रेट फॉर्मूला के थ्रू क्विकली डिफाइन कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी जो करेंसी है वेदर अप्रिशिएट हुई है या डिप्रिशिएट हुई है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं ईयरली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर. एंड यू नो दैट हाउ टू प्लग कि आपने इस साल की वैल्यू में से पिछले साल की वैल्यू माइनस करके डिवाइड कर दिया पिछले साल की वैल्यू से. सो वो आपके पास बेसिकली स्पॉट रेट के थ्रू वैल्यू चेंज आपने डिफाइन कर लिया या डिटरमिन कर लिया कि परसेंटेज चेंज कितना है. हाउएवर द चैलेंज इज कि फाइन आप वो परसेंटेज चेंज तो निकाल लेते हैं, आप उसमें अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन तो डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन ये चेंजेस आते क्यों है? दैट इज द टास्क कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये करेंसी अप्रिशिएट क्यों हुई, डिप्रिशिएट क्यों हुई. प्लस आप उन्हीं चेंजेस को देख के फ्यूचर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी या डिप्रिशिएट होगी. सो दैट इज द चैलेंजिंग थिंग. वन थिंग कि आपको चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है कि इतना ड्रास्टिक नेगेटिव चेंज फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है करेंसी में, वो क्यों आ रहा है. सेकेंड थिंग कि क्या यही नेगेटिव चेंज फ्यूचर में होगा या नहीं होगा. अगर आपको वो कंडीशंस मिल जाएं जिनके अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन हुई है, करेंसी डी वैल्यू हुई है या डिप्रिशिएट हुई है, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप मेंशन कर दें कि फाइन फ्यूचर में ये फोरकास्ट होगा. However, it is also discussed in previous lectures कि आप किसी भी करेंसी में चेंज या फिर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उनको एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ट्रेंड्स. सो टू अचीव either of these concepts जो हमने ऊपर डिस्कस किए अभी पिछले पॉइंट में, the concept of an equilibrium exchange rate must be understood. क्योंकि अगर आपने पास्ट ट्रेंड्स को देखना है या अगर आपने चेंजेस देखने हैं कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं या वैल्यू डेविएट क्यों कर रही है या वैल्यू डिप्रिशिएट क्यों कर रही है, इन दैट केस यू शुड नो कि आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है. एन एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अ करेंसी which is determined by the demand for the currency relative to the supply of the currency. So it's again the same concept of demand and supply. जब किसी करेंसी की डिमांड किसी पॉइंट पे लाई करेगी, अगेंस्ट दैट जो सप्लाई ऑफ दैट करेंसी मार्केट में एग्जिस्ट करेगी, दैट विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. बिकॉज यू नो कि जब आप डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट सप्लाई कर्व, तो दोनों कर्व्स किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं. वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है दैट विल डिटरमिन योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि आपकी करेंसी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां लाई कर रहा है. Before considering why an exchange rate changes, we have to realize that an exchange rate at given point in time basically represents the price of a currency. तो जब हम बात करते हैं कि exchange rate है, it is basically price of one currency in terms of other currency, because exchange rate जब आप currency exchange करते हैं तो आप उसके against payment देते हैं.
तो वो प्राइस होती है उस करेंसी की. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट चेंजेस, सो वो जो प्राइस चेंज हो रही है, दैट इज द चेंज इन एक्सचेंज रेट. It goes similarly with the other concept कि like any other product sold in the market, the price of a currency is determined by the demand for that currency relative to the supply. तो जैसे हमने प्रोडक्ट्स की भी बात की कि उसकी डिमांड और सप्लाई के अगेंस्ट उसकी वैल्यू डिटर्मिन होती है. जिस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कितनी ही उसकी मार्केट में कितनी आती है, that forces of supply and demand determines the price of that particular product. कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, that will determine the price of that particular product. सेम गोज फॉर द करेंसी कि किसी करेंसी की मार्केट में कितनी डिमांड है, उस करेंसी की सप्लाई मार्केट में कितनी अवेलेबल है, दैट विल डिटरमिन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी. Thus, for each possible price of British pound, there is a corresponding demand for pounds and a corresponding supply of pounds for sale. Now, let's discuss the demand for a currency. The United Kingdom has not adopted the euro as its currency and continues to use pounds. We discussed in previous lectures कि आपके European Union form हुई थी to basically facilitate the international trade, और European Union ने एक common currency adopt की थी which was called यूरो. उन कंट्रीज ने बेसिकली ये करेंसी क्यों अडॉप्ट की? टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज इट इज इजी to basically have a transaction in the same currency in all over the European region to avoid exchange rate risks. United Kingdom has not adopted the euro as its currency and it continues to use the pound. तो आप अगर UK में जाएं तो आप basically euro नहीं बल्कि वहाँ पर pounds जो हैं वो basically within United Kingdom use होते हैं. So the next slide will show a diagram in which we will basically represent a hypothetical number of pounds that would be demanded under various possibilities for exchange rates. So demand जो pounds की है वो next slide में हम define करेंगे through a diagram जो कि against any other currencies उसकी demand produce हुई into the market. At any point in time there is only one exchange rate. जो भी हम इस स्लाइड पे करेंगे इस ग्राफ में कि आपके एक पॉइंट पे एक ही एक्सचेंज रेट आएगा, तो एक ही वैल्यू डिटरमिन करेगी एक्सचेंज रेट को. And the slide will show basically the quantity of pounds that would be demanded at various exchange rates at specific point in time. So let's see the students the equilibrium of exchange rates in terms of demand and supply. So as discussed earlier कि आपका demand curve is downward trending and this diagram shows it very clearly कि आपकी जो line आ रही है demand curve की वो downward trend कर रही है, and on your y-axis that is the value of pound, on your x-axis that is the quantity for pounds. Now look, you can see same for your access कि आपके value of pounds available हैं और supply of pounds is given from the supply curve which is upward trending, and the criteria for downward and upward has been discussed in our previous lecture. आपकी demand और supply जहाँ meet करती है in the market of exchange rates, that point will be the intersection point जहाँ पे आपके demand curve supply curve को टच कर रहा है, and that point is basically your equilibrium exchange rate. आपकी डिमांड और सप्लाई के कर्व जहां पे एक दूसरे को टच करेंगे वो पॉइंट बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है. So that is the point where the demand and supply of that currency is equal into the market, and that is your equilibrium exchange rate point. Now we have discussed the demand for pounds and demand criteria for the pound. Let's discuss the supply of a currency for sale. So let's discuss on the from the other point of view. US demand for pounds has been considered in previous slides, but the British demand for US dollars must also be considered. तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि यूएस में जो डिमांड है ब्रिटिश पाउंड्स की, अगर हम इसको अदर वे राउंड ले लें, सो ब्रिटिश पाउंड्स जो अवेलेबल हैं फॉर सेल, दैट विल बी द सप्लाई फॉर द सेम करेंसी. तो आप जब बात करते हैं किसी करेंसी की इन टर्म्स ऑफ कि किसी करेंसी की डिमांड कितनी है,
ऑन दी अदर साइड यू ऑल्सो से कि उसी करेंसी की सप्लाई कितनी है। तो वो बेसिकली इस जो पिछली डायग्राम में हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन किया वो उसी तरह से डिटरमिन होगा कि अगर ब्रिटिश पाउंड्स की डिमांड है मार्केट में तो ब्रिटिश पाउंड्स की सप्लाई कितनी अवेलेबल है मार्केट में। सो वो पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे वो आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करेगा। This can be referred to as a British supply of pounds for sale। अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई कर्व की कि जहां पर आपकी डिमांड तो अवेलेबल थी ब्रिटिश पाउंड्स की, सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर द सेल जहां पे अवेलेबल होगी दैट विल बेसिकली डिटरमिन द सप्लाई कर्व। Since pounds are supplied in foreign exchange markets in exchange for US dollars. A supply schedule for pounds for sale in the foreign exchange market can be developed in a manner similar to the demand schedule for the pound। तो जिस तरह हमने डिमांड की बात की उसी तरह हम सप्लाई स्केड्यूल भी डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी करेंसी की सप्लाई मार्केट में किस पॉइंट पर कितनी है। Now liquidity of a currency, that is basically a liquidity of the currency affects the sensitivity of exchange rate to specific transactions। So जितनी liquidity available होगी, जितनी ज़्यादा transaction किसी currency में हो रही होगी, that will basically be related or that can affect the sensitivity of the exchange rate। तो जितनी ज़्यादा transaction हो रही हैं किसी currency में उतनी ही ज़्यादा basically liquidity है, और liquidity जो है वो sensitivity को भी डिफाइन कर सकती है किसी एक्सचेंज रेट के कि कितना सेंसिटिव है, कितना अपवर्ड ट्रेंड है, कितना डाउनवर्ड ट्रेंड है। विद मेनी विलिंग बायर्स एंड सेलर्स इवन लार्ज ट्रांजैक्शंस कैन बी इजीली अकोमोडेटेड। तो अगर तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं, किसी करेंसी की सेल और परचेज ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स मार्केट में ज्यादा बायर्स हैं जो अवेलेबल हैं और जो कि विलिंग हैं उस करेंसी को परचेज करने के लिए। व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि अगर आपकी डिमांड बहुत बड़ी भी है वो भी उस मार्केट में अकोमोडेट हो जाएगी, बिकॉज करेंसी जो है वो लिक्विड है, उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई ज्यादा है। सो जिस करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई किसी मार्केट में ज्यादा होगी दैट इज मोर लिक्विड, और जब कोई करेंसी जितनी ही ज्यादा लिक्विड होगी दैट मीन्स उतनी ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने की वजह से लार्ज डिमांड्स और लार्ज सप्लाईज भी अकोमोडेट हो जाती हैं उस मार्केट में या उस फाइनेंशियल मार्केट में। ऑन द अदर साइड और कन्वर्सली और ऑन द ऑपोजिट साइड इनलिक्विड करेंसीज, वो करेंसीज जो कि ज्यादा जिनकी ट्रांजैक्शंस नहीं है या जिनकी ज्यादा डिमांड नहीं है या जिनकी ज्यादा सप्लाई नहीं है, टेंड टू एग्जिबिट मोर वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। सो बेसिकली इट इज डिटरमिन्ड कि अगर तो करेंसी की डिमांड और सप्लाई ज्यादा है तो ऑब्वियसली बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन भी स्मूथली हो जाएंगी मार्केट में, बिकॉज जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी अवेलेबल है उस मार्केट में, बहुत क्विकली हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत क्विकली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इन दैट पर्टिकुलर करेंसी, तो वो करेंसी बहुत हाईली लिक्विड है। और अगर करेंसी हाईली लिक्विड है दैट मीन्स कि उसकी ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाएंगी, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगी या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। ऑन दी अदर साइड वो करेंसीज जो कि बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं होती या बहुत ज्यादा उसमें एक्सचेंज रेट नहीं मूवमेंट होती, से फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं पाउंड्स की या डॉलर्स की एग्जांपल ले लें। कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी है हमें पता है डॉलर्स में बहुत स्मूथली हो जाएगी। ऑन दी अदर साइड आपकी डॉलर्स में अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बहुत लिक्विड है क्योंकि उसकी परचेज भी हो रही है, डॉलर की सेल भी हो रही है, डॉलर मार्केट में अवेलेबल है, डॉलर लिक्विड करेंसी है। अब लिक्विड करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशंस कम होंगी, सो वी नो इट कि डॉलर जो है वो बहुत स्टेबल करेंसी है, उसकी फ्लक्चुएट होने का चांस कम है। ऑन दी अदर साइड इनलिक्विड करेंसी से फॉर एग्जांपल हम अपने पाकिस्तानी रुपी को ले लेते हैं, हमें ये पता है कि फॉरेन मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए पाक रुपी नहीं यूज होता, सो ऑब्वियसली इसकी डिमांड सिर्फ उसी जगह पर होगी जहां पे पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हो रही हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो पाकिस्तान की ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास पाक रुपी यूज हो रहा है। सो वो पाक रुपी इज नॉट वेरी मच लिक्विड करेंसी, इट इज मोर ऑफ अ illiquid currency। what happens in that case कि इस केस में वॉलेटिलिटी आने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज ये करेंसी बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है। सो वो करेंसीज जिनमें ज्यादा मूवमेंट्स हैं दैट मीन ज्यादा डिमांड है, ज्यादा सप्लाई है, वो तो लिक्विड है। वो करेंसीज जिनमें डिमांड या सप्लाई ज्यादा नहीं है वो इलिक्विड है।
अब उन करेंसीज में बेसिकली मूवमेंट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं. दैट मीन्स आपकी जो करेंसी में मूवमेंट्स, ड्रास्टिक मूवमेंट्स ज्यादा आएंगे, तो दैट मीन्स वो करेंसी वॉलेटाइल हो जाएगी. सो जिन करेंसीज में मूवमेंट ज्यादा है, जिन करेंसीज में मूवमेंट मीन्स जिन करेंसीज में बेसिकली लिक्विडिटी ज्यादा है, वो स्मूथ भी हैं और उनमें वॉलेटिलिटी भी कम है. वो करेंसीज जो कि ज्यादा इनलिक्विड है या उनमें लिक्विडिटी नहीं है, तो उन करेंसीज में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हो रही और उन करेंसीज में वॉलेटिलिटी आने के चांसेस ज्यादा हैं. Now let's discuss about some factors which are important for the exchange rates. So E in this equation, which is a dependent variable in this case. तो एक चीज तो आपको इस equation से related मैं आपको बता दूं. Let's discuss it in again. Let's see the equation itself again. E basically is a, जब इस form में equation आए, that is dependent form. So E is dependent on F आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करता है फॉर द फंक्शन ऑफ चेंज. जो छोटा ट्रायंगल इसमें गिवन है, स्मॉल ट्रायंगल, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द चेंज. जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में स्मॉल ट्रायंगल के साथ किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स चेंज. तो आपके E जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंस, कि कितना डिपेंडेंट है E ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि बेसिकली चेंज in these variables. So let's see what is E and what are these right hand side variables. So E is basically the percentage change in spot rate. अगर हम बात करें on left hand side, तो आपके E represent कर रहा है percentage change in the spot rate. Percentage change in spot rate can be determined by the formula which we have discussed in our earlier slides, कि आप current spot rate में से previous spot rate को minus करके divide कर दें previous spot rate पे, that will give you the percentage change in the spot rate. तो अब उस change को अगर आप ले लें कि percentage change जो आपका है उसको आप equation के left hand side पे रखें और बात करें कि इसका परसेंटेज चेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सो राइट हैंड साइड उन वेरिएबल्स को या उन फैक्टर्स को डिफाइन कर रही है जो कि बेसिकली इफेक्ट करते हैं आपके स्पॉट रेट के परसेंटेज चेंज को. इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स, इस इक्वेशन में दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है. लेफ्ट साइड आपके डिफाइन करती है स्पॉट रेट चेंज को, राइट साइड उन फैक्टर्स को डिफाइन करती है जो कि बेसिकली अफेक्ट करते हैं परसेंटेज चेंज को स्पॉट रेट के. आपके राइट हैंड साइड पे फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज स्मॉल ट्रायंगल के साथ, दैट इज चेंज इन इन्फ्लेशन, दैट इज चेंज इन रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट. सो आपका किसी भी फैक्टर से रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट का जो चेंज है दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ओवर द करंट और परसेंटेज चेंज इन द स्पॉट रेट. तो वन थिंग, इन्फ्लेशन और रिलेटिव इन्फ्लेशन कैन हैव एन इम्पैक्ट ओवर द exchange rate movement. Second thing, that is the change in the relative interest rate. So we are talking about कि आपके जो spot rate changes हैं या percentage change जो spot rate में है, that can be changed or that can have an impact due to the change in the relative interest rate. Third criteria or third factor that can have an impact over the exchange rate or over the spot rate is the change in the relative income level. Fourth one, change in the government controls. So we have discussed कि जब हम exchange rates की बात करते हैं तो government का जो role है that is very much important, क्योंकि government sometimes intervene करती है to control. Because we discussed कि आपके different types के exchange rates होते हैं, regimes हैं, से fixed exchange rate है, floating exchange rate है, managed floating exchange rate है. So government का जो role है that is very much important and that can have an impact over the spot rate of the exchange rate. Finally, we will also discuss the changes in the expectations of future exchange rates. तो जो expectations है
that can also have an impact over the exchange rate movements or over the spot rates. So these factors are also very much important when we are discussing basically the exchange rate movements or the spot rate movements or spot rate change. Let's discuss them one by one. So relative inflation rates. Changes in relative inflation rates can affect international trade activity, which influences the demand and supply of currencies and therefore influences exchange rates. So basically हम जब बात करते हैं exchange rates की, so at the back basically there is some type of transaction, क्योंकि currency तो exchange तब हो रही है जब कोई trade हो रहा है. So currency directly exchange नहीं हो रही, but it is exchange for the imports or exports. तो imports और exports के ऊपर inflation का impact है. किसी country में जब inflation होगी, so obviously there would be an impact over its imports and exports. So due to inflation जब आपकी imports या exports affect होंगी, so that will have an impact over the exchange rates also, क्योंकि currency movements जो उसके against हो रही हैं वो भी affect होंगी. So obviously when there is a change or relative change in inflation rate, that can have an impact over international trade, और वो international trade से आपके exchange rates linked हैं. In that case आपके exchange rate movement affect होगी. Similarly, the demand and supply schedule would also be affected if US inflation suddenly increased substantially while British inflation remained the same. So अगर तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ यूएस और यूके की, कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में और इंग्लैंड में इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाए, और अमेरिका में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है सडनली ड्यू टू सम ड्रास्टिक चेंज, कुछ भी हुआ कि इन्फ्लेशन सडनली इंक्रीज कर गई, while ब्रिटिश इन्फ्लेशन सेम इन्फ्लेशन रेट सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली आपका ट्रेड इफेक्ट होगा, क्योंकि प्राइसेस जो हैं, इन्फ्लेशन क्या है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं. अमेरिका में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, सडनली इंक्रीज हुई हैं ड्यू टू सम एनी फैक्टर. हाउएवर ऑन द अदर साइड यूके की मार्केट में प्राइसेस चेंज नहीं हुई. अब कॉमन सेंस है कि आपकी अगर अमेरिका में प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, ब्रिटिश इकोनॉमी में प्राइसेस नहीं इंक्रीज हुई, तो फॉरेन ट्रेड में इफेक्ट होगा, क्योंकि यूएस कमोडिटीज की डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी. Assume that both British and US firm sell goods that can serve as substitute for each other. से substitute क्या होते हैं कि वो प्रोडक्ट जो कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सके, वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है. सो अगर तो ब्रिटिश कंपनी और यूएस कंपनी प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही है या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, दैट मीन्स कि यूएस का प्रोडक्ट अगर आपने नहीं बाय करना तो आप यूके का प्रोडक्ट बाय करके उसको यूएस के प्रोडक्ट की जगह यूटिलाइज कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल कोई भी आप एग्जांपल ले लें, परफ्यूम्स की एग्जांपल ले लें, डिओड्रेंट्स की एग्जांपल ले लें, कि अगर आपने एक प्रोडक्ट जो कि दूसरे प्रोडक्ट की जगह यूज हो सके, दैट इज सब्स्टिट्यूट. अब अगर तो आपके यूएस फर्म में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हाउएवर ब्रिटिश इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही हैं, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? द सडन जंप इन यूएस इन्फ्लेशन शुड कॉज एन इंक्रीज इन यूएस डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स. सो इवन अमेरिकन जो हैं या यूएस इकोनॉमी में भी ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उनकी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई, अमेरिकन प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की. अमेरिकन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड रिड्यूस हो जाएगी. हाउएवर ऑन द अदर साइड, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी में सेम टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है, तो यूएस इकोनॉमी में भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. Therefore, it will also cause an increase in the US demand for British pounds. सो ऑब्वियसली जब अभी तक हमने बात की प्रोडक्ट्स की, ठीक, कि आपके सब्स्टिट्यूट हैं दो प्रोडक्ट्स, एक अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है, एक यूके में प्रोड्यूस हो रहा है. अमेरिका में प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, सो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश प्रोडक्ट की. ब्रिटिश प्रोडक्ट की जब डिमांड ज्यादा होगी
सो ऑब्वियसली वो डिमांड ज्यादा होने की वजह से अगर अमेरिकन इकोनॉमी ब्रिटिश प्रोडक्ट को डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सो उसके साथ सिर्फ प्रोडक्ट अटैच नहीं है, उसकी प्राइस भी अटैच्ड है, और वो प्राइस बेसिकली ब्रिटिश पाउंड्स में है. So that means it will also increase the US demand for British pounds, क्योंकि आपने पेमेंट ब्रिटिश पाउंड में देनी है, तो ब्रिटिश पाउंड की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट. In addition, the jump in US inflation should reduce the British desire for US goods and therefore reduce the supply of British pounds for sale. So दूसरी साइड पे जो यूके के कस्टमर्स अमेरिका से प्रोडक्ट्स ले रहे थे, उनकी डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब वो ये देखेंगे कि अमेरिकन प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं. सो जो वो पाउंड सप्लाई कर रहे थे अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ अमेरिकन गुड्स, वो भी रिड्यूस कर जाएंगी. सो दैट मीन्स सप्लाई जो है ब्रिटिश पाउंड्स की वो रिड्यूस हो जाएगी अगेंस्ट इंपोर्ट्स जो कि उन्होंने अमेरिका से प्रोडक्ट्स मंगवाने थे. व्हाट विल हैपन? सो देयर इज द पॉइंट जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर यूएस इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज डिमांड ऑफ यूएस फॉर ब्रिटिश गुड्स विल हैपन. व्हाई? क्योंकि अमेरिका में प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, सो आपके ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो गई है, और उनकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से बेसिकली जो उनकी ब्रिटिश पाउंड की डिमांड है वो भी ज्यादा हो गई है. That will basically shift the demand curve on the right side, और डिमांड इंक्रीज हो गई which is D1. तो जो अर्लियर डिमांड थी that was D0, और क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ब्रिटिश इकोनॉमी की जो डिमांड है या ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है. वो डिमांड इंक्रीज होने की ब्रिटिश पाउंड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पेमेंट सारी ब्रिटिश पाउंड्स में होनी है. सो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ओवर द डिमांड ऑफ ब्रिटिश पाउंड्स, और ब्रिटिश पाउंड्स की डिमांड इंक्रीज कर रही है, दैट इज D1. नाउ लेट्स सी द सप्लाई. द ब्रिटिश डिजायर फॉर यूएस गुड्स, जो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ब्रिटिश जो इकोनॉमी है उसमें यूएस गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू इंक्रीज्ड प्राइसेस, एंड हेंस द सप्लाई ऑफ पाउंड्स ऑल्सो विल डिक्लाइन इन दैट केस, बिकॉज आप कम प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे तो आप सप्लाई भी कम करेंगे उन पाउंड्स को, तो आपकी जो सप्लाई है वो दूसरी साइड पे मूव कर रही है या वो डिक्लाइन कर रही है ऑफ पाउंड्स. सो दैट इज S1. नाउ यू कैन सी कि आपके पास D0 का जो कर्व आ रहा था S0 के साथ, तब आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट R0 था. नाउ your equilibrium point has been moved to another point where basically D1 is going to intersect the S1. So आपका जो नया equilibrium point है that is R1. That depends on the demand and supply criteria of the market, कि आपके basically inflation ने जो impact लाया कि US economy में inflation ज्यादा होने की वजह से British economy में US products की demand कम हो गई. वो डिमांड कम होने की वजह से बेसिकली ब्रिटिश पाउंड्स की सप्लाई भी रिड्यूस हो गई. सो इन्फ्लेशन हैज एन इम्पैक्ट ओवर द ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जब इंटरनेशनल ट्रेड में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है दैट स्ट्रेट अवे हैव एन इम्पैक्ट ओवर द एक्सचेंज रेट्स, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जितनी भी होनी है वो आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के साथ लिंक्ड है. तो आपकी जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजैक्शन है दैट विल स्ट्रेट हैव एन इम्पैक्ट ओवर द एक्सचेंज रेट मूवमेंट. What will happen in that case? कि जब आपके एक्सचेंज रेट मूव करेंगे ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट करेगा. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जब शिफ्ट करेगा दैट विल डिटरमिन द एक्सचेंज रेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एग्जैक्टली डिटरमिन कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई कितनी थी, और that was your equilibrium point in that particular point of time. So students, let's review today's lecture. First of all, we discussed the exchange rates. What are exchange rates? So basically exchange rate can be defined as the price of one currency in terms of अदर. सो आपकी एक्सचेंज रेट्स बेसिकली किसी एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी की वैल्यू में जो डिफाइन करते हैं दे आर कॉल्ड
एक्सचेंज रेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितनी पे करनी पड़ती है, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी. सो दैट्स द टर्म्स वेयर वी यूज एक्सचेंज रेट. We discussed the appreciation and depreciation of a currency. So if you go through anywhere in articles, books, कहीं पे भी अगर आपको ये terms defined हो या फिर ये term use हो रही हो कि the currency is depreciated or the currency is appreciated. So what does that mean? So अगर तो किसी currency की value किसी दूसरी currency की value के against increase कर रही है या strengthen हो रही है, that will be called the appreciation of the currency. You can also call it strengthening of the करेंसी. तो आपको बेसिकली देखना पड़ता है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट इनहेंस कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है या नहीं. सिमिलरली डेप्रिसिएशन, जब कोई करेंसी किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट डिक्लाइन कर रही हो इन इट्स value. So we call it that the currency is depreciating. So basically there are two terms, depreciation and appreciation of the currency, जहाँ पे आप define करते हैं कि whether the currency is increasing in its value or decreasing in its value. तो इसके बाद आप चाहे books में पढ़ें या newspaper में पढ़ें या कहीं article में पढ़ें, when these terms are used, that depreciation of a currency and appreciation of a currency, you should know it कि appreciation of a currency means कि जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रही है. डिप्रिसिएशन मींस जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट डिक्लाइन कर रही है इन इट्स वैल्यू. We also discussed the spot rate changes, percentage changes in spot rates. अब spot rates में percentage change कैलकुलेट करने का क्या तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि स्पॉट रेट क्या है, दैट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि इमीडिएट रेट ऑफ any currency in order to get your currency to be converted in another one is called your spot rate. Say for example आपने आज ही रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है या डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है. सो एट द मोमेंट जो करंट प्राइस चल रही है डॉलर की, दैट इज द स्पॉट रेट. अब अगर आप उस स्पॉट रेट में चेंज कैलकुलेट करना चाहें कि उस स्पॉट रेट में कितना चेंज आया है ड्यूरिंग द पास्ट टाइम, आप उसको एक महीना कह लें, एक दिन कह लें या एक साल कह लें, हाउ वुड यू कैलकुलेट कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है किसी भी करेंसी में. दैट परसेंटेज चेंज विल बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस फॉर्मूला विच वी हैड डिस्कस्ड कि आप करंट स्पॉट रेट में से प्रीवियस स्पॉट रेट, वेदर इट इज लास्ट मंथ स्पॉट रेट और लास्ट ईयर स्पॉट रेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस ईयर की जो भी आपने पिछला स्पॉट रेट रखा हुआ है उससे. दैट विल गिव यू अ परसेंटेज चेंज इन दैट पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी. हमने इस लेक्चर में डिस्कस की एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एनुअल परसेंटेज चेंज वेयर वी डिस्कस्ड द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ 2000 टू 2006 और 7. एनुअल परसेंटेज चेंज जब हमने फाइंड किया उसमें वो वैल्यूज जो पॉजिटिव आ रही थी, दैट रिप्रेजेंट द करेंसी इज अप्रिशिएटेड अगेंस्ट द अदर करेंसी. हाउएवर ऑन द अदर साइड इफ द आंसर फॉर दैट फॉर्मूला जो आपको स्पॉट रेट के थ्रू कैलकुलेट किया है नेगेटिव आ रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट अ डिप्रिसिएशन इन द करेंसी. सो अगर तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं थ्रू दैट फॉर्मूला, दैट विल रिप्रेजेंट, आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये करेंसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुई है. हाउएवर अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आ रहा है, सो यू कैन से दैट जो वैल्यूज हैं दे आर बेसिकली नेगेटिव, सो दैट रिप्रेजेंट द डिप्रिसिएशन. सो वो करेंसी दूसरी करेंसी की वैल्यू के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रही है परसेंटेज में. और यू कैन ऑल्सो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि इतने परसेंट डिक्लाइन आया है इस करेंसी की वैल्यू में अगेंस्ट द अदर करेंसी, और इन अदर वर्ड इतने परसेंट इंक्रीज हुई है वैल्यू अगेंस्ट द अदर करेंसी. We also discussed the exchange rate equilibrium. So before discussing the exchange rate equilibrium, we said you should know कि करेंसी की डिमांड कितनी है या उस करेंसी की सप्लाई कितनी है. डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो कि आपकी उस करेंसी में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपके पास करेंसी की डिमांड उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी है और सप्लाई कितनी है.
डिमांड कर्व डाउनवर्ड ट्रेंड करता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड ट्रेंडिंग है. वी हैव डिस्कस दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स कि इसके रीजंस क्या हैं कि आपका डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड ट्रेंड करता है या सप्लाई कर्व क्यों अपवर्ड ट्रेंड करता है. बट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट यू शुड नो कि आपके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ दैट करेंसी, कि उस करेंसी में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है या उस करेंसी में किस पॉइंट पे जाके डिमांड या सप्लाई इक्वल हो जाती है. वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी वो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट करेगा उस कर्व पे या उस ग्राफ पे. जहां आपकी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बेसिकली डिटरमिन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इट डजंट मीन कि 2001 में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वही इक्विलिब्रियम पॉइंट 2002 में भी होगा और वही इक्विलिब्रियम पॉइंट 2003 में भी होगा. नो. Why? Because डिमांड और सप्लाई मार्केट में चेंज होती रहती है एंड ड्यू टू दैट चेंज डिमांड एंड सप्लाई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है. से फॉर एग्जाम्पल आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो ऑब्वियसली डिमांड कर्व आपका मूव कर जाएगा फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पे प्रीवियसली आपका डिमांड कर्व लाई कर रहा था. अगेंस्ट उसी नए डिमांड कर्व के सप्लाई कितनी अवेलेबल है मार्केट में, दैट विल बेसिकली फॉर्म अ न्यू सप्लाई कर्व. सो जहां पे नई डिमांड और नया सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल डिटरमिन योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. बट यू शुड बी क्लियर कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है चाहे आज चाहे कल चाहे नेक्स्ट ईयर जहां पे डिमांड और सप्लाई उस पर्टिकुलर करेंसी की इक्वल हो जाएंगी, दैट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम पॉइंट. We discussed the liquidity criteria of a foreign currency or foreign exchange rates. Why a currency is called illiquid or why the currency can be illiquid. When there are more and more transactions for a particular currency, that is called liquid currency या liquid exchange rate. क्यों? क्योंकि उस currency के लिए बहुत ज़्यादा exchange हो रहा है, demand भी ज़्यादा है, supply भी ज़्यादा है. सो फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉलर. तो डॉलर की से डिमांड भी ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई भी मार्केट में ज्यादा है क्योंकि मोस्टली ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होती हैं. सेम गोज फॉर यूरो, क्योंकि यूरो एक कॉमन करेंसी बन गई है फॉर द यूरोपियन यूनियन. तो यूरोप में या यूरोप से बाहर जितनी ट्रांजैक्शंस होनी है विद यूरोपियन कंट्रीज वहां पे यूरो की डिमांड है. अब उस यूरो की डिमांड पे डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई कितनी है. डिमांड और सप्लाई जितनी होगी वो ही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करेंगे. और क्योंकि यूरो और डॉलर बहुत ज्यादा यूज होने वाली करेंसीज हैं, लाइक उसकी डिमांड भी ज्यादा है, उनकी सप्लाई भी ज्यादा है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, दैट करेंसी इज कॉल्ड लिक्विड करेंसी. जो करेंसी ज्यादा लिक्विड होगी दैट मीन्स कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है. ऑन दी अदर साइड वो करेंसी जिसकी डिमांड या सप्लाई ज्यादा नहीं है, से फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी करेंसी जिसकी डिमांड या सप्लाई बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू यूरो या डॉलर नहीं है इतनी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड इलिक्विड करेंसी. We discussed another point which is called basically in liquidity criteria we also discussed another point कि volatility. वो करेंसीज जिनकी डिमांड और सप्लाई ज्यादा होती है उन करेंसीज में वॉलेटिलिटी भी कम होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई की वजह से उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते और ड्रास्टिक मूवमेंट्स नहीं आती. इन दैट केस वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती और उन करेंसीज में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होती. उन एक्सचेंज रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस कम आने के चांसेस होते हैं. ऑन द अदर हैंड दोज करेंसीज विच आर इनलिक्विड, क्योंकि उनमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं हो रही, डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं हो रही, देयर यू कैन ऑब्जर्व कि वहां पे फ्लक्चुएशंस ज्यादा आने के चांसेस हैं और वॉलेटिलिटी के ज्यादा आने के चांसेस हैं. What happens in that case? कि उस केस में बेसिकली आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस आती हैं और वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस आते हैं. सो वन थिंग इन योर माइंड, जितनी करेंसी ज्यादा लिक्विड होगी उतनी कम वॉलेटाइल होगी. जो करेंसी कम लिक्विड होगी या इनलिक्विड होगी वो ज्यादा वॉलेटाइल होगी. Finally, we discussed the factors that can affect the exchange rates.
and we said if you have your exchange rates, what are the factors that can have an impact over exchange rate movements? So जो आपके परसेंटेज चेंज हमने स्पॉट रेट्स के थ्रू कैलकुलेट किया था, उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो कि इफेक्ट कर सकते हैं. One of them we discuss now in this lecture is the inflation. Since we are discussing exchange rates, तो जब हम exchange rate की बात करते हैं, so it's not something कि किसी को UK में बैठे हुए पाकिस्तानी रुपये की ज़रूरत है और वो पाकिस्तानी रुपये मांग रहा है. बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं exchange rates की, so that is something कि ट्रेड हो रहा है, imports और exports हो रही हैं, whether it is the transactions in terms of financial assets or merchandising trade, we need some type of currency against that. आपको इंपोर्ट्स के लिए भी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज रेट्स की, क्योंकि आपने करेंसी को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ओवर द मूवमेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो सकता है ओवर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. हाउ? से फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज हैं, वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ यूएस एंड यूके. इन दोनों कंट्रीज में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज करना है, फॉर एनी रीजन अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर लें. सो अगर आप ये देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट अमेरिका में और दूसरा यूके में प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से यूके में अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड रिड्यूस हो गई है. What will happen in that case? Obviously, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, डिमांड डिक्रीज होने की वजह से करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई पे भी इफेक्ट होगा. वो इफेक्ट जो कि करेंसी की डिमांड और सप्लाई पे होगा, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ओवर द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. सो इन्फ्लेशन कैन बी वन फैक्टर थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन the exchange rate movements. So in our next lecture, we will discuss the other parts of or the other factors that can have an impact over exchange rate movements. Till now, we have discussed these points, and specifically we have discussed inflation till now, how inflation can have an impact over the exchange rate movements. So we will discuss the other factors in our next lecture. Till then, Allah Hafiz and thank you.